ادا کرتے ہیں. شارٹ نوٹس پہ ہم نے آپ کو کال کیا, آپ یہاں تشریف لائے. مجھے لگتا ہے اپنی پارٹی کے اندر سب سے پہلی تیاریاں تھی کہ ہم الیکشن اناؤنسمنٹ سے پہلے اپنا مینیفیسٹو اور پروگرام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے, لیکن الیکشن کمیشن نے جو بیفور ہینڈ ان ایکسپیکٹڈلی کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ہی ڈیٹس کا اعلان کیا, تو ہم ایک آدھا دیر سمجھتے ہیں ہم مؤخر کر گئے اپنا یہ پروگرام. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے آپ کی وساطت سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور سپریم کورٹ آف انڈیا کا بھی شکریہ ادا کریں گے. کئی برسوں کے بعد جس طریقے پر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہمیں اس جمہوری نظام میں اپنے رائے دہندگی کا موقع ملنا چاہیے, اپنی حکومت ملنی چاہیے, اس کا شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری بات آگے پہنچتی نہیں تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ڈس امپاورڈ ہیں, اور یہ کہنے میں کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہے. کچھ ایسے قوانین یہاں پر لائے گئے جس سے ہمیں لگتا تھا ہماری صورت مسخ ہو گئی ہے, ہم ڈس امپاور ہو گئے ہیں, ہمارے پاس جو قانون تھے وہ ختم ہو گئے ہیں, ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اور اس وقت کا جو صورتحال جس وقت یہ قوانین لائے گئے, ہم دم بخود ہو گئے. ریاست جموں کشمیر کے تمام لوگ, بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی, آگے چلنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. اور ان حالات میں بڑی مشکل سے 2020 میں ہمارے جو سینئر لیڈرز تھے جموں کشمیر کے مختلف پارٹیوں کے جو الیکشن سے وابستہ تھے, ہم نے کوشش کی ایک پارٹی بنانے کی اور ایک پروگرام لوگوں کے سامنے لانے کی. یہ لوگوں کے پاس فیصلہ اس وقت کرنا ہے کہ ہم کتنا اس اپنے پروگرام میں آگے چل پائے اور کتنا نہیں چل پائے. اگر ریسنٹ پارلیمنٹری الیکشنز کا ہم بیوڑا لیں اور ریزلٹس لیں, ہم نے کوئی اس میں خاص کامیابی حاصل ہی نہیں کی. مختلف وجوہات پارٹی نے اس کے لیے بھی جاننے کی کوشش کی. ہمیں کئی ایسی باتوں کے ساتھ جوڑا گیا, کئی ایسی پارٹیوں کے ساتھ جوڑا گیا تھا جو صحیح نہیں تھا, لیکن ووٹر طاقتور ہوتا ہے, جس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. اور ہم نے ریسپیکٹفلی یہ اس وقت کی ہار تسلیم کرنی, اور آج جب ہم میدان میں آ رہے ہیں, ہم نے بنیادی سطح پر اپنے لوگوں, اپنے ورکرز کو یہ گزارش کی کہ پرو پیپل ایک ایجنڈا ہم بنانے کی کوشش کی. اتنے 72 سال سے یہاں عوامی حکومت ہے, بہت سے وعدے کیے گئے جو برابر نہیں ہوئے, بہت سے وعدے کیے گئے جو ٹوٹے بعد میں الیکشن میں اچھے مینیفیسٹوز سننے میں اچھے آئے, وہ نہیں ہوئے. ہم نے کوشش کی تھوڑا اس سے بالاتر ہونے کی, وہ بات کرنے کی جو ہمارے ہاتھ میں ہو, جو اور ہم کل پائیں گے. ہم نے جب پارٹی کا انعقاد کیا تھا تو اس وقت ہم آئے تھے لے کر ایجنڈا ڈیولپمنٹ کا. ہم نے سوچا ڈیولپمنٹل ایجنڈا ہے, لوگوں کا کام ہے, گھر ہے, مکان ہے, بجلی ہے, سڑک ہے, لیکن جموں کشمیر کی سائیکی اور لوگوں کا جو یہاں پہ ذہن ہے, مجھے لگتا ہے ہمارے ریاست کے لوگوں کو, یہاں کے لیڈرز کو, سیاسی پارٹیز کو زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا تشخص کیسا ہے, ہم عزت سے یہاں جی رہے ہیں یا غلط طریقے سے جی رہے ہیں. 5 اگست کے بعد جو تھپڑ ہم سب پہ پڑا پولیٹیکل لیڈرز کو لے کر لوگوں تک, اور جو حالات ہمارے ساتھ پیدا اس کا ہمیں بہت صدمہ ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ زندگی پر شاید یہ صدمہ دور نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی اس مینیفیسٹو کے ذریعے سے کہ وہ تمام قوانین جو یہاں پر لاگو ہوئے ہیں, جس سے ہم ڈس امپاور ہوئے ہیں, کسی جھگڑے کے بغیر, لڑائی کے بغیر, گولی کے بغیر, ڈنڈے کے بغیر, ہم کوشش کریں جو اس کے پاسبلٹیز ہوں ریسٹور کرنے کے, وہ ہم ریسٹور کرانا چاہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی ایک الیکشن دیکھا ہے جو ہماری پارٹی بننے کے بعد وجود میں آیا, وہ BDC کا الیکشن تھا, جس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 370 یا اسٹیٹ ہوڈ واپس آ گیا, وہ نہیں آیا. تو اس لیے ریزولوشنز کی بات بھی کی, کئی پارٹیوں نے کی. ریزولوشن کا بھی آپ نے 1996 میں دیکھا ہے جب ریزولوشن ہوا, لیکن حکومت کو بچاتے بچاتے ریزولوشن ڈسٹ بن میں گیا, وہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. 75 سالہ یہ تواریخ ہے ریاست کی جموں کشمیر کے لوگوں کی, جہاں آج ہمارا یوتھ ڈس امپاورڈ تصور کرتا. ہم آوازیں تو سب دیتے ہیں بہت کہ ہم اپنے یوتھ کو امپاور کریں گے, کیسے کریں گے جبکہ حالات نے ہمارے یوتھ کو ڈرگز میں دھکیل دیا ہے, غلط کاموں میں دھکیل دیا ہے, گھروں میں خلف شاری ہے. ہمارا جو سوشل فیبرک تھا, جس کے لیے ہم اپنے اسٹیٹ کو ایک اپنا تشخص مانتے تھے, وہ تشخص ہی تار کیا ہے. اور جن لوگوں نے وہ تشخص تار کرنے میں رول کیا ہے, وہی آج یہ دہائیاں دے رہے ہیں ہم سارا یہ ٹھیک کریں گے. ہماری نظر میں ناممکن ہے. ہم صرف یہ امید کرتے ہیں کہ اگر ہمارا پروگرام
लोगों को पसंद आए वो हम उनको एक सामने रखेंगे। फिर हम सबको जुट जाना है, लेडीज एम्पावरमेंट हो या नौजवानों का एम्पावरमेंट हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये जो हमारा माशरा है ये एक बहुत ही बुरी हालत में है। तो पहले ये पॉलिटिकल एक सिनेरियो है इसका, उसके बाद रोजमर्रा हमारे पेट का मसला है, रोटी का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, टूरिज्म का मसला हो, यहाँ रिलेटेड जो तमाम मसाइल हैं वो हैं। यहाँ मैं एक बात करना भूल गया जहाँ तक बच्चों के एम्पावरमेंट का है। हमारे बहुत से बच्चे सेफ्टी एक्ट में हैं, उसके बाद उनको छोड़ा गया, फिर गिरफ्तार किया गया। यहाँ एक बहुत अच्छी तादाद है बच्चों की 2016 से जो जेलों में है, उनको छोड़ा गया है लेकिन उनके नाम थानों में है। ना उनको सीआईडी वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए मिलती है, ना उनको नौकरी करने की इजाजत है। तो हम उसके लिए इस एजेंडा में आप देखेंगे आगे उसमें हमने सुविधा रखी है। हम ये सोचते हैं अगर हमारी हुकूमत आती है तो ये डेट जो अगस्त का डेट, अगस्त 2024 तक जो लोग ऐसे कवानीन में बिला वजह बंद है, तकलीफ में है, बाहर के जेलों में बंद है, मैं कहता हूं कि एक एमनेस्टी का प्रोग्राम तय होना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी, एक बार माफी देनी चाहिए उन लोगों को जिनको छोटे छोटे क्राइम्स हैं, ताकि वो अपने घर में आकर अपने समाज को सुधार सके। वही हम समझते हैं एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। हम ये नहीं समझते हैं कि बच्चों को लाएंगे, उनको यूथ बाड़ी में धकेलेंगे, उनको नारे दिलवाएंगे, उनसे झंडे लगवाएंगे अपनी पार्टी को, इलेक्शन में आगे आएंगे और फिर उसका कोई नतीजा नहीं होगा। ये मेन पॉइंट्स हैं। उसके अलावा बिजली का मसला भी आप सुनेंगे। अब पानी है ही नहीं कि साफ पानी, लेकिन उस पर मीटर लगाने जा रहे हैं। पावर की क्राइसिस है, उस पर रेट्स बहुत बढ़ गई। ये सारा हम एड्रेस करना चाहे बशर्ते कि लोगों ने हमें साथ दिया। और आप देखते हैं एक खदशा जो हमने रिसेंटली जाहिर किया और हमने तमाम पार्टीज को गुजारिश की थी कि हमारा साथ दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि हम लीड करेंगे, हमने कहा हम पीछे रहेंगे, लेकिन ये जो हमारी आने वाली स्टेट और बनने वाली स्टेट को बिल्कुल विदाउट पावर बनाया चीफ मिनिस्टर को, उनके इख्तियारात आप ले रहे हैं, वो एक पपेट होगा एलजी के हाथ में। उसके लिए ज्यादा पेशरफ नहीं हुई बाकी पार्टीज की तरफ से। हमने सोशल मीडिया के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को और बाकी साथियों को भी गुजारिश की थी। इस वक्त हमें सब लोगों की सोचने की जरूरत। बहरहाल लोगों को शायद उसमें इतना नहीं हुई, वो बात नहीं पलट पाई। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन में तमाम पार्टी के हदूद से बालातर होकर इस बात की जरूर तवज्जो दी, जहां नौजवानों का मसला है, जहां ड्रग्स का मसला है और स्टेट की एम्पावरमेंट का मसला है। तो इसके आगे हम आपको बाद में काफी भी देंगे। मैं छोटी छोटी 2-3 बातें, मैं आपका वक्त भी ज्यादा नहीं लूंगा, जहां पर आप एक्सप्लेनेशन चाहे वो भी मैं कहूंगा। तो रेस्टोरेशन ऑफ अमेंडेड लॉज, ये मैंने पहले ही कहा, मुझे लगता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आप समझ गए होंगे। और स्टेटहुड का मसला है, उसकी तरफ मैंने इशारा किया। हम एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का रेस्टोरेशन यहाँ पे चाहते हैं। उसके लिए हमें कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि असेंबली इलेक्शन से पहले हो जाए, नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई चारा नहीं। हमारा पूरा ताकत इसमें लगना चाहिए, जिस भी तरीके से हम हो पाए वो एक थोड़ा सा रिडर्सल होगा। जहां तक लैंड का प्रोटेक्शन है, जो हमारी जमीन है उसका प्रोटेक्शन, और नौजवानों की ये नौकरियों का प्रोटेक्शन, वो जो अगर हम दुहाइयां दे रहे हैं कि हमने उसका प्रोटेक्शन लाया है, लेकिन ये 370 की तरह हम आर्जी और कमजोर नहीं रखना चाहते हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की जरूरत है, ताकि आने वाले कोई भी हुकूमत, चाहे हम हों चाहे मुखालिफ हुकूमत हो, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जमीनों को किसी तरह छेड़खानी नहीं, ये उनका हक है और यही हक वहां पर रहना चाहिए। इसके साथ साथ जिन बातों का मैंने इशारा किया कि मौजूदा हालात में हमें अपने आप को कल्चरल इन्वेजन लगता है, हमें यहाँ पे रहन सहन पे इन्वेजन लगता है, हमें कहीं कहीं दिक्कत आती है जिस तरीके से हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसलिए कल्चरल आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन के लिए भी हमें काम करना होगा। और जिस वक्त 5 अगस्त को ऐलान हुआ ये कवानीन का, उस वक्त जो हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता था MLC, वो भी उड़ा दिया गया है। हम चाहते हैं कि वो भी वहां पर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित्स का रिटर्न हम चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथी हैं। कितने लोग आना चाहते हैं, कितने नहीं आना चाहते, उनके लिए एक बाज़ाब्ता कमीशन हो, उनकी उसमें राय हो, जिस तरीके से खुश रहेंगे यहाँ के मुसलमान भाइयों को डिसाइड करना। लेकिन हमारा हमेशा ये ख्याल रहा है कि गवर्नमेंट से ज्यादा इसमें रोल लोगों का होगा। लोगों के दिल में अगर खदशात हो, उस तरफ से इस तरफ से वो दूर करने के साथ साथ बाइसित गवर्नमेंट भी हम इसमें इंशाल्लाह ये
تکمیل تک پہنچائیں گے. اولڈ پینشن اسکیم جو ملازموں کا بہت زور ہے وہ بری حالت میں ہو جاتے ہیں. جو پینشن کی نئی اسکیم آئی ہے اس کو ہم نئے سے پرانی اسکیم کو لاگو کرنا چاہتے ہیں. فارس ایکٹ جو سارے ہندوستان میں فارس ایکٹ ہوا ہے وہ وہاں پہ ایس ٹی کیٹیگری کے لوگوں کو ملا ہے لیکن یہاں پہ نہیں ملا ہے. لیکن ہم اس میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایس ٹی کیٹیگری کے علاوہ جو لوگ نان ایس ٹی ہیں جو جنگلاتی علاقوں میں رہتے ہیں ان تک بھی یہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے فارسٹ ایکٹ. ڈیٹینیز کے بارے میں میں نے ذکر کیا, یہ ڈیٹیل نوٹ آپ کو ملے گا. ہم یہ چاہتے ہیں جو باہر کے جیلوں میں ہیں وہ واپس آئیں, جن کے خلاف کوئی زیادہ ہینیس کرائمز ہیں ان کو چھوڑا جائے, جن کے خلاف معمولی ایف آئی آر ہے اور لیکن ابھی تک بھی ان کو 26 جنوری کو پرائم منسٹر کے دن پہ 15 اگست کو تھانوں میں 3 دن 4 دن یاترا کے دنوں پہ ان کو بلایا جا رہا ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاترا کے روز ہر جگہ تلاشی, گاڑی روکو. ہمارا خوش آمدید ہے یاتریوں کو, ہم ان کے محافظ ہیں, سرکار بھی ان کی محافظ ہے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف لوکلز. ان کو بھی ایک ٹورزم ریلیٹڈ ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. آگمٹ کارڈر جو انہوں نے بنایا ہے بہت سے یو ٹیز اور اسٹیٹس کو ملا کر, جس سے ہمارے آگمٹ کے یہ آفیسر جو ہیں وہ ایٹ دا بیک اینڈ کال آف ایسے بیوروکریٹس یا منسٹرز رہتے ہیں جس سے وہ اپنی سوسائٹی میں کوئی رول نہیں ادا کر سکتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آل انڈیا سروس کا جو کارڈر تھا وہ پہلے ہی کی طرح یہاں پہ قائم ہو. ہم یہ بھی امید کر کے آپ اور ہم سب لوگ مل کر اسٹیبلٹی کی طرح, پختہ اسٹیبلٹی کی طرح, یہ نہیں کہ ہم اسٹیبلٹی چاہیں گے خالی الیکشنز میں اسٹیبلٹی چاہیں اپنی کامیابی کے, نہیں. وی ہیو سین اے ویری ڈیزاسٹرس پیریڈ آف مور دین 40 ایئرس. ہم کوشش کریں گے, دعا کریں گے اور امید کریں گے اب آپ سے مل کر ہم ایک بہت ہی اچھے طریقے کا یہاں پہ ماحول پیدا کر لیں گے. چیف منسٹر کے پاورز کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا. آنے والا چیف منسٹر آج کے قانون کے مطابق کوئی طاقت نہیں رکھتا ہوگا, اس کے لیے بھی ہم کام کریں گے. پاور سپلائی کا بہت ہی یہاں مسئلہ ہے. 2 سال سے نہ سردی میں پانی ملتا ہے, پاور ملتا ہے, نہ ونٹر میں پانی ملتا ہے. ریٹ 200, 400, 1200, 1500 جو ہاں میٹرز نہیں ہے وہاں 1500 بھی ٹچ کر گئی. اور میٹر ایریاز میں سمارٹ میٹرز کا جہاں پہ وعدہ تھا وہاں پہ بھی بجلی کی دقت ہے. تو ہم یہ دقت کو دور کرنا چاہیں گے, وہ آگے میں بتاؤں گا وہ کیسے دور ہوگی. لیکن اس میں ہم نے یہ پروگرام کیا ہے کہ ہم گرمی کے دنوں میں جموں والوں کو 500 یونٹس فری پاور دیں گے اور کشمیر والوں کو سردی میں 500 یونٹس فری پاور دیں گے. بجلی کی سپلائی کو لے کر جو ہائیڈل پروجیکٹس یہاں پہ ہیں, جو ہائیڈل پروجیکٹ NHPC وغیرہ کے پاس ہیں, انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور جو ان کی اس میں انویسٹمنٹ تھی وہ تقریباً انہوں نے ختم کر دی ہے. ہم چاہیں کہ ہم ان سے واپس لینے کے لیے کوشش کریں گے. اگر ہائیڈل پروجیکٹ جو ہمارے ہیں, جو ہمارے پانی سے بنتے ہیں, اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہماری کوئی دقت نہیں ہے, اور ہم پاور ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ آپ ہمارے پھر یہ PDF میں جو ہم دیں گے اس میں شاید آگے پیچھے یہ ہوگا. پانی کا صاف ستھرا پانی ہمیں مل نہیں رہا. ہر جگہ پانی فلٹرڈ آپ کو مل نہیں رہا. بہت سی جگہیں جہاں پانی ہے نہیں لیکن سرکار بھی میٹر لے کر آئی ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ ابھی میٹر لگانے سے پہلے پانی کی سپلائی کو درست بھی کیا جائے, ریگولر بھی کیا جائے. اس کے بعد جب لوگ سیٹسفائیڈ ہوں گے, پانی ٹھیک ملتا ہے, تو ٹائم بینگ میں چاہتا ہوں واٹر جو میٹرز ہیں وہ ڈیفر کیے جائیں گے. ٹورزم ڈیولپمنٹ کا اللہ کا کرم ہے, پچھلے 2-3 سال سے ٹورزم ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے, لیکن ایک حفاظت مینر میں بڑھ رہی ہے. جو ہماری پرانی جو مشہور جگہیں ہیں, پہلگام ہے, گلمرگ ہے, سونمرگ ہے, یہ تو ہو رہی ہیں, لیکن یہاں ایسی خوبصورت جگہیں ہر علاقے میں, بنگس میں ہے, یہاں پیر پنچال میں ہے, ڈوڈا میں ہے, اننت ناگ کے علاقے میں ہے, کوکر ناگ کے علاقے میں ہے, دودھ پتھری, بہت سی ایسی جگہیں ہیں. وہاں ایک ٹورزم فٹ فال بڑھے گا اور ہمارے نوجوان اسی کے ساتھ جڑ جائیں گے. وہ صرف سرکاری کام میں نہیں بلکہ اور کاموں میں بھی جڑ جائیں گے. اس کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے پلانڈ مینر میں ہسٹوریکل جگہوں کو, بلکہ اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں جس طرح ماتا ویشنو دیوی میں جموں کا ہے تو وہاں ایک ٹورسٹ سرکٹ بنتا ہے پیلگرمز کا. ہم چاہتے ہیں یہاں بھی وادی میں, خاص کر شہر سری نگر میں جہاں ہماری زیارتیں ہیں, خانقاہ محلہ ہے, چار شریف ہے, یہاں پہ ہمارے استھاپن ہے ہندو کے, درگا ناگ ہے, اور اوپر ہے کیا کہتے ہیں اس کو, شنکراچاریہ ہے. ایک ایسے سرکٹ بنے جہاں لوگ شامل بھی ہو جائیں اور ان کے لیے تمام بیسک انفراسٹرکچر بھی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہو. یوتھ امپلائمنٹ کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی کہا, ہمارے پاس رپورٹڈلی وی ہیو نو ایکسیس ٹو دا گورنمنٹ
पेपर्स में सुनने में आया कोई लाख से ऊपर जॉब्स हैं। अगर हम सरकार में आए तो 6 महीने का हम वादा करते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर हम जॉब्स फास्ट ट्रैक बेस पे वो करेंगे। और उसके साथ साथ प्राइवेट जॉब्स का एक बिल्कुल होगी कॉर्पोरेशन, जितने बच्चे जाएंगे वो दे शुड नॉट फील इनसिक्योर। आज प्राइवेट नौकरी में जाएंगे, कल कोई निकालेंगे, उसमें एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी ठीक ठाक से बच्चे जज्ब हो सकें। और जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है जिनमें ऊपर मैंने जिक्र किया, उसमें चूंकि बहुत से मुलाजिम बाहर के हैं, हम चाहते हैं कि 80% जॉब्स हमें यहाँ मिल जाए। मेट्रो सर्विस जिस तरह बड़े बड़े शहरों में आ रही है, हम चाहते हैं जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में मेट्रो सर्विस हो जाए। इसके बाद गवर्नमेंट के पास एक मीगर अमाउंट होता है जो डेस्टिट्यूट्स को मिलता है, ऑर्फन्स को मिलता है 1000 रुपए का। अगर हम हुकूमत में आए तो हम उसको सीधा 5000 रुपए करना चाहते हैं। और LPG सब्सिडी जो है वो हमने 4 सिलेंडर्स BPL और AA कैटेगरी के लिए हर साल मुफ्त देने का इरादा रखते हैं। और बहुत से ऐसे यहाँ हाउस होल्ड्स हैं, हमारा अंदाज़ा 70,000, जहाँ पे मेडिकल, HDFC, PHE, PDD, रोड्स और बहुत से दफातर हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, कहीं को ऑर्डर नहीं है, कहीं को तनख्वाह नहीं है, लेकिन सरकारी ड्यूटी वो दे रहे हैं। तो इस सारे को हम वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं ताकि ये 60,000 घर मुस्तफीद हो जाएं। आगे जो कवानीन गवर्नर के बने हैं, डेली रिटर्न वर्कर कहाँ पर लगा, मुलाजिम कहाँ लगा, क्या कवानीन होंगे, लेकिन ये लग गए हैं वक्तन फवक्तन, किसके हाथ से लग गए, इनका लटकाना ठीक नहीं है। ये पैसा भी लेते हैं, मर मर के लेते हैं और इनकी सारी जिंदगी एंड ऑफ द रिटायरमेंट पर होती है। ये सारे डिपार्टमेंट्स, हो सकता है मुझे यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट चूक गया हो, लेकिन आपके पास आ जाएगा तो ये जरूरी होना चाहिए। सरकारी जिस तरह स्कूल्स होते हैं, मॉडल स्कूल, हम चाहते हैं एक पैटर्न पर कम से कम हर तहसील में एक ऐसा मॉडल स्कूल हो जो प्राइवेट स्कूल को compete करे, ताकि रागिब हों प्राइवेट स्कूल वाले भी ऐसे स्कूल बनाने के जैसे हमारे बच्चे कम्पिटेटिव स्कूल्स में आ जाए। और ये मॉडल स्कूल हम हर जगह लाएंगे। इसके बाद हॉर्टिकल्चर जो हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, इसमें हमें 2 साल से अखरोट, सेब और बादाम को झटका लगा है। इसकी मार्केटिंग ठीक नहीं हो रही क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेरिका से और बाकी ममालिक से एप्पल भी इंपोर्ट किया, वालनट भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है ये लाना जरूरी है, लेकिन उन पे ऐसी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए ताकि कश्मीर का जो हमारा जम्मू कश्मीर का फ्रूट है वो कम्पिटिटिव तौर पे मार्केट में उतर जाए। अदरवाइज हम इस साल जो बैठे हैं अखरोट वाले और सेब वाले, उनको बहुत ही दचका लगा है। इसके साथ साथ जो एंटी हेल नेट्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, बाकी चीजें हैं, वो चाहते हैं कि हम तहसील लेवल पर, हर तहसील लेवल पे रूरल एरियाज में वो रखें ताकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से उभर आए। केरोसिन जो फार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है और शहर में भी कभी कभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो गवर्नमेंट ने बंद किया है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि केरोसिन की सप्लाई भी रेस्टोर हो जाए। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कॉलेजेस ही नहीं है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं, कुछ एरियाज भी है, उसके लिए बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके पे कॉलेजेस का कायम होगा। और मिनिमम वेज एक्ट जो है वो भी लागू नहीं हो रहा और मुलाजिमों को कहीं पर सैलरीज में अंतर है, कहीं ज्यादा कहीं कम, वो हम यूनिफॉर्म रेट पर लाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, राशन में जो रिडक्शन हुआ था कोटा में, उसको हम NFSA प्रोविजन के अलावा 5 kg जो राशन मिलता है शहर और गांव में, उसको हम 10 kg करना चाहते हैं। और जिसके साथ साथ हम शुगर और केरोसिन भी राशन कार्ड्स पे देने का इरादा रखते हैं। IT पार्क्स हर जिले में कायम होंगी, प्रोसेसिंग यूनिट्स हर जिले में कायम होंगी। और टूरिज्म प्रमोशन के लिए प्राइवेट सेक्टर जो हमारे नौजवान हैं, जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग की है, जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं, जो उसमें जानना चाहते हैं, उसमें एक नई तरतीब दी जाने की कोशिश की जाएगी। बहुत से ऐसे एरियाज है, खासकर रूरल एरियाज में, जहां हमारी बैंक ब्रांचेस नहीं है, हम बैंक ब्रांचेस वहां पहुंचाना चाहते हैं। और हॉस्पिटल्स का एक बड़ा मसला है, हमारे पास बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ 3-4 हैं, जैसे सोरा है, SMHS है, शीरीन बाग है, LD है, बोन एंड जॉइंट है, लेकिन इतना थ्रस्ट है, खासकर गाँव से यहाँ लोग आ जाते हैं
और सारा काम इन्हीं को करना पड़ता है। उससे श्रीनगर के लोग भी सफ़र करते हैं, गांव वालों को भी टाइम नहीं मिलता है और डॉक्टर्स की भी शिकायत रहती है। हम चाहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल हो, हम चाहते हैं हर तहसील में ऐसे हॉस्पिटल्स हों जो फुल्ली कैटर कर सके, चाहे वो CCH लेवल के हों, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल के हों, रेफरल्स कम हों, ताकि ये भी यहाँ इत्मीनान से इलाज अपना करा सके जो भी पेशेंट्स यहाँ टेरिशरी केयर में पहुँचते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जिस वक्त हुए, जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट बने, जिस वक्त तहसील बने, जिस वक्त कोर्ट बने, उस वक्त जल्दी में, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे इसके असेंबली के यूनिट्स में बने, ये इस वक्त एट रैंडम और जल्दी से बने जैसे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कई जहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर है लेकिन उसका दूसरा हेडक्वार्टर वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हम एक ये चाहते हैं कि हम नए से नई क्रिएशन करें, जहाँ जहाँ पे ये तहसील नहीं है, नायाबते नहीं है, वो दे और इनको को टर्मिनस बनाए, रेवेन्यू हल्कों को, पंचायत हल्कों को, इनको को टर्मिनस बनाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो। और इसके साथ साथ कोर्ट्स भी जो हैं, इस तरह बाहर की अदालतों में अच्छे तरीके हैं, इसके सोशल मीडिया वगैरह वो कर लेंगे। KCC लोन्स का बहुत एक बड़ा मसला है यहाँ पे, खासकर रूरल एरियाज में, चूंकि मिलिटेंसी थी 5 अगस्त के बाद भी लोगों ने ठीक किया और KCC लोन्स है लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इनको वन टाइम वेवर करना चाहते हैं जो KCC लोन जमींदारों को। ट्राइबल हॉस्टल्स कई डिस्ट्रिक्ट्स में है, कई जगहों पर नहीं है, वो हम बनाना चाहते हैं। चूंकि वाटर टेबल कम होने लगा, जो एनवायरमेंटल हैजर्ड हो गया है, पानी कम आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है हमें ट्यूबवेल्स की तरफ लोगों को एनकरेज करना होगा और उसके लिए हम सब्सिडाइज्ड स्कीम्स बनाना चाहते हैं। इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं और पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सरकार ने इस तरह से मिंगल किए हैं, जहां इरिगेशन का स्कीम है, न पीने का पानी साफ किसी को मिलता है और न इरिगेशन ही कवर करता है। इन सारे स्कीमों को रिविजिट करने की जरूरत है। इतना खूबसूरत अल्लाह ने हमें तोहफा दिया है नदी नालों का, लेकिन मुझे लगता है दे आर अनकेयर्ड फॉर, उनको ठीक तरीके से वो करने की जरूरत है। स्कूलों और 10+2 और कुछ लेक्चरर्स जहाँ पे अड़ाक हैं, कई सालों से हैं, उसको भी एक रेगुलराइजेशन करने की जरूरत है। पावर जनरेशन में जो नए विंड पावर, सोलर पावर वगैरह है, वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे होगा ताकि हम पे उस मामला वो दफा हो जाएगा। उसके साथ साथ दरबारों की प्रैक्टिस जो यहाँ साल से थी, हमारी ख्वाहिश है और उम्मीद है और कोशिश करेंगे अगर हमारी हुकूमत आई तो दरबारों को आज सर नौ जिंदा करेंगे। हम समझते हैं लोगों को बहुत तकलीफ है और एक कल्चरल इंटीग्रेशन है, उससे वो हम फिर से नए से करना चाहते हैं। नंबरदार और चौकीदारों का बहुत बड़ा रोल होता है हर एरिया में, वो बहुत ही मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनको ऑनरेरियम होता है मंथली, वो बढ़ाने का हम इरादा रखते हैं। और सिख कम्युनिटी यहाँ पे जो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा देने का हम इरादा रखते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे खेल के मैदान में बड़ी दिलचस्पी रहते हैं, अगरचे गवर्नमेंट के पास काफ़ी एवेन्यूज़ है, लेकिन ज़मीन स्क्वीज होने के साथ साथ स्टेडियम कम हो रहे हैं। उसके साथ जो बच्चों को रागिब करने की ज़रूरत है ताकि वो ड्रग्स की मैने से भी बाहर आएँ और अपना टैलेंट भी करें। इस डिपार्टमेंट को हम और वाइब्रेंट बना के ग्राउंड तक कनेक्ट कराना चाहते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट का मैंने पहले ही जिक्र किया है, ये खाली परसेंटेज उनको इलेक्शंस में पंचायत में देने से नहीं है। दे मस्ट गेट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स, दे मस्ट फुली पार्टिसिपेट विद मेन, और उससे इनकी अपनी एम्पावरमेंट हो जाएगी। आंगनवाड़ी सेंटर जो पहले 500-700 पे होता था, हम इरादा रखते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आई 300 जहाँ पे ये नफूस हूँ वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर हम देना चाहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट पे इंडस्ट्रियल एस्टेट का होना ज़रूरी है। और ट्रेडर्स का वफद हमें मिला था, कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं ट्रेडर्स पे, जो भी हमारे पास डिटेल उसके नहीं है, हम वो रिकंसिडर करेंगे। और एक टूरिज्म पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर 5 साल से 2 साल कर दिया गया है। वो बड़ा मुश्किल है और लगता है कि जो ये टूरिस्ट ट्रेड वाले हैं उनको सिर्फ फिर कागजात लेकर ही चलना है, मुझे लगता है वो कारोबार करने तक नहीं पहुंच जाएंगे। एक अलग सी स्कीम फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होगी, उनको दर दर की ठोकरें खाने के बजाय हम चाहते हैं कि हर घर में एक डिपार्टमेंट का बंदा आए, उनका सर्वे करे और उनके नीड्स को ज़रूरियात के मुताबिक हल करने की कोशिश करें।
अगरचे रोड कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद भी ज़िलों के साथ कई फार फलंग एरियाज़ हैं जहाँ भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। वो हम चाहते हैं कि वो भी टॉप मोस्ट एजेंडा पर हमारे हो जाए और हर ज़िले में स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन हो जाए। ड्रग प्रिवेंशन और यूथ का तो मैं पहले ही जिक्र कर रहा हूँ। सबसे एक बड़ी बात यहाँ इस गवर्नेंस रूल में हुई, जो हमारा मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है, माइनिंग जो होती है, इस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाई। ये कौन लोग निकालते हैं इसका भी इल्म नहीं है। इसकी शॉर्टेज भी हो रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। कई एक जगह रोका जा रहा है, कई जगह अलाउ किया जा रहा है, लेकिन इसकी यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं, जिसके लोग और जो इसके साथ वाबस्ता लोग हैं वो बहुत ही मुसीबत में। आर्जी तौर हमने कोशिश की थी इनको सहायता करने की, लेकिन मुझे लगता है हम पूरी तरह से इसमें कामयाब नहीं हुए। लास्ट ऑफ ऑल है जो हमारा और आपका साझा मसला है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको 24/7 एट बैक एंड कॉल ऑफ पीपल रहना चाहिए। एक करप्शन फ्री सरकार होनी चाहिए, और जो सरकार की नज़र करप्शन पर रहती है, उसके अलावा हम कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़ा करें प्राइवेट सेक्टर से जो अपने अपने इलाकों में लोगों को तकलीफ दिए बगैर इस पे एक आंख खुली रखे, ताकि करप्शन फ्री हमारा एक माहौल बन जाए। हाल ही में सरकार ने अपनी ये रोशनी एक्ट में कुछ तरामीम की है, उसको उड़ाया है। हम इरादा रखते हैं कि लोगों की कंसल्टेशन के बाद, लोगों से मशवरे के बाद उसको रिवीजन करे, और रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनीज, जो कुछ कॉलोनीज आई हैं उनकी डिमांड है कि हम कॉलोनीज बन गई हैं, मकानात बन गए हैं, उनको सुविधाएं देकर रजिस्ट्रेशन करने की भी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया बहुत। जनाब मैनिफेस्टो पार्टी ने जारी किया, लेकिन पार्टी के कायद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है? ऐसा है कि आपकी पार्टी से लोग जा रहे हैं, और वैदिक मुंतजर साहब ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी आपकी पार्टी को तोड़ रही है, जबकि आप पर के इल्जाम था कि मैं बता बीजेपी के एम पर पीडीपी और दीगर पार्टियों को तोड़ कर ये पार्टी। मैं बताता हूं, मैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ अपने प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता हूं। उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अचानक इलेक्शन हो गया, वो यहाँ तशरीफ नहीं लाए, लेकिन उनके अप्रूवल से, उनकी मीटिंग के प्रेसिडेंट करने के बाद ये हमने यहाँ पे बनाया। अब आपका सवाल उससे भी अहम यह है कि लोग भागे जा रहे हैं। पहली बात ये बताऊंगी, हमसे ही नहीं भागे। आपने कल बाकी पार्टियों का भी देखा होगा, हमने नाम लेने की जरूरत नहीं है, और इट इज़ नॉट ए न्यू फिनोमेना। जब भी इलेक्शंस होते हैं, दो लोग मैंडेट के लिए खड़े होते हैं। आज सब लोग बर्दाश्त, एक को मैंडेट मिलता है, दूसरा भाग जाता है। इट इज पार्ट ऑफ दैट। लेकिन ये डेफिनेट मैं आपको बताना चाहता हूं विद ऑल द स्ट्रेंथ कि कुछ पार्टियां लगी हैं। नेशनल कांग्रेस ने भी कोशिश की, हाँ, उन्होंने हमारा सिटिंग एमएलसी वहां था, वो उसको उड़ाकर ले गए। चलो, जमहूरी निजाम में उसने डिसीजन किया, लेकिन बीजेपी ने तो ज्यादा ही हल्ला किया। जो हमारे टॉप मोस्ट लीडर थे, बीजेपी ने हटाया। एक मैं बताऊंगा फ्रैंकली आपको, पता नहीं मुझे ये इजाजत कहने की है नहीं है, एक बार डेफिनेटली हमारी पार्टी में एक सोच थी कई लोगों की प्रो बीजेपी रहने की, उनके साथ ये करने की, लेकिन हमने देखा 4 साल से हमने कुछ हासिल नहीं किया। हम एक मजबूत हुकूमत बनाना चाहते, फिर अल्लाह ने हमारी किस्मत में क्या लिखा, 35 साल थे तो लोग यहाँ पे जख्मी हो गए कि कौन कौन सरकार हमारे मदद में आई। आज जो लोग कहते हैं 370 को वापस लाएंगे, उनकी वसादत से 370 खत्म हो। आज लोग जो कहते हैं आप बीडीपी के बी टीम है, उनको किसी पार्टी ने दावत देकर यहाँ लाया। मैं आज गुजारिश करता हूँ आपसे, क्योंकि आप भी वोटर्स हैं, मैं कहता हूँ जमीर को देखिए, हमें झंझोड़िए, हमें पकड़िए। जहां पे हमारी गलती हो आप हमें झंझोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन ऐसी बात जहां पे जो बात 20 बार किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने गलत की हो, क्या हम अभी भी हमें इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जो वो कहेंगे हम मानेंगे? डीडीसी में कहा 370 वापस आएगा, नहीं आया। फिर कहा कोर्ट से वापस लाएंगे, नहीं आया। तो इसके बाद कोई ऐसी बात बताओ, लोगों से पूछो आपका आप कितना मदद कर सकते हो। एक पार्टी ने कहा हम 100 साल इंतजार करेंगे, दूसरी पार्टी ने कहा हमारे पास 100 साल। ये तोड़ मरोड़ के बातें पेश कर दी, हमने वो नहीं किया आपके साथ। आप हमारे अजीज हैं, बच्चे हैं, वोटर्स हैं। अब जब हम डूबेंगे आप भी उसको डूबेंगे। यहाँ किसी ने आज तक किसी पार्टी ने बचाया नहीं है। 70 साल हुकूमत की है। मुझे फिर आपको ये सवाल आप लोगों से मैं पूछूंगा, जिस वक्त 53 में डिसएम्पावर स्टेट हुई, 370 का दशका क्या उस वक्त नहीं लगा? 370 को उसी वक्त खत्म किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो किया कांग्रेस ने, वो बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी तो खुलेआम आई। 72 साल ये 370 जुल्म है, ज्यादती है। एक हमारा सेक्शन वहां मिल गया, उसमें हम भी कसूरवार हैं, कुछ मिल गया, उड़ा दिया। वापस कैसे आ गया? ये कार इजारत मामला है,
इसके लिए हमें जुट जाना है, लड़ाई के बगैर, डंडे के बगैर। हमें बदकिस्मती ये है, जब हम कोई एक्ट करते हैं, जब हम कोई बात करते हैं, हमें ये कहा जाता है इनको किसी ने पत्थर हाथ में दिया है। इनको इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे लेडीज और हमारे नौजवान अगर एम्पावर हो जाएंगे, वो एक बार सोचेंगे हाउ वी विल कम आउट ऑफ दिस मेस, दे विल कम आउट ऑफ दिस मेस। मैं एक बात बताता हूं, हमें आजादी से, 370 से, कश्मीर से सबसे बड़ा जंग, मैं उन लोगों के और एजेंसीज का नाम नहीं लेना चाहता हूं जिन्होंने हमारे यूथ को धकेल दिया है इस जहर में। आज कौन सा घर है जहां लड़की लड़का जहर शराब नहीं पीते, इंजेक्शन नहीं करते हैं? मैं कितना भी मिनिस्टर बनाऊं, लेकिन अपने घर में करूंगा क्या जब मेरा बच्चा मुझे थप्पड़ मारने आएगा? ये डिसएम्पावरमेंट हमारी है। अब कागजों की बातें होती हैं, हमारी भी मजबूरियां होती हैं, जबान ज्यादा खोल नहीं सकते हैं। हम एक बात करते हैं, 40 बार हम पे उंगलियां उठती है। 99 में जब बीजेपी बनी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड ये एल.के. अडवाणी की जमात है। हमने एक पता नहीं सही किया गलत किया, हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए। कल मैं पीडीपी के एक लीडर की बात सुन रहा था पहलगाम में कोई डिमोलिशन को लेकर, उन्होंने कहा हम एलजी से मिलेंगे। जब हम कहते थे एलजी से मिलेंगे, वो कोई हिंदुस्तान है, कल हुकूमत यहां बनेगी, हमारी बनेगी या किसी और की बनेगी, तो वहां तो प्राइम मिनिस्टर से मिलना होगा, तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। हम ओपन है इस बात के लिए। हाँ, लेकिन हम बेगिंग बाउल लेकर नहीं जाएंगे, झुक के नहीं जाएंगे, लेकिन गोली लेकर भी नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे, ऊपर हमारा एक निजाम है अल्लाह का, हम उम्मीद करेंगे कामयाबी होगी, लेकिन शर्त यह है कि हमारे दिल में सिंसियरिटी हो। अगर हम शॉर्टकट करेंगे कि इस वक्त हम वोट लेंगे, कल को नजर नहीं आएंगे, वो भी ऐसी नहीं। हमारे साथ इतिहाद, हमारे अब लाइक माइंडेड पार्टी कोई रही नहीं। हम इनको दुश्मन दिख रहे हैं। हमने कहा था आपसे सवाल पूछूंगा, हमने कहा था आप आइए, ये चीफ मिनिस्टर के पावर जो कम हुए बातचीत करेंगे। मुझे बताइए मेरी पार्टी को इससे क्या फेदर मिलता? आते कहते कि आप पीछे रहो, मुंतजर साहब आप पीछे रहिए, आप टेंटेड है, लेकिन मशवरा ये है आप क्या करेंगे? कोई आगे नहीं आया। जिन पार्टी ने यहाँ तोड़ फोड़ कर दी, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा। मुझे बताइए पीएचडी में जो लोग आए, क्या पीएचडी उन्होंने कश्मीर की पार्टीज को नहीं तोड़ा? क्या 1984 में, आप सब यंगस्टर्स होंगे लेकिन पढ़ा होगा आपने, 1984 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसने यहाँ गिरा दिया? वो आज क्या पीएचडी बनाएंगे? वो आज क्या दोस्ती करेंगे? ये इनके घर के झगड़े होते हैं। एक दिन झगड़ा होता है, कहते हैं हम अलग अलग हो गए, आज कहते हैं हमने इतिहाद किया, हम रिश्तेदार सारे जमा हो गए। प्लीज मैं आपकी वसातत से वोटर्स को कहता हूं, खबरदार रहिए, आप अपनी मर्जी से ले जाए, भले ही गलत हो वोट की कीमत ये नहीं है कि 500 रुपए वोट की कीमत हो, चावल वोट की कीमत यह है कि आगे 30 साल के लिए आप देखिए, आप अगले 30 साल के लिए क्या ऐसी हुकूमत दे सकते हैं जिसका रिडर्सल आप कर सकते हैं। अगर जो आप सवाल पूछ रहे हैं, हमने बहुत पहल की थी, अगर ये हमें यहाँ खड़ा कर दे कोर्ट में और यहाँ स्टेज पर कोई हमारा मुखालिफ लीडर बैठता, हम तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, जो उसकी वो क़यादत करते थे। तारिक आमी साहब का हमें मैसेज आया था शायद, वो हमें कहते भैया आपने तो हमें ये भेजा, लेकिन हमें आप पे शक है, हम अपने शकूक अपनी जबान से दूर करते लोगों के सामने और एक माहौल बनता। लेकिन इन पार्टीज को यहाँ ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने में बहुत मजा है, क्योंकि वोटर हमारा सीधे साधे लोग हैं, उसमें थोड़ी सी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अक्सर जो आपके पार्टी के सुप्रीमो थे वो अक्सर कहते थे जो कश्मीर में सियासतदान है हर कोई दिल्ली के साथ ताल्लुक रखता है, फर्क यह है कि वो रात को जाते हैं, मैं दिन में जाता हूँ। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का इल्हाक आपका बीजेपी के साथ था, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड था, ऑन द रिकॉर्ड था, ऑफ द कर्टन्स या ऑन द कर्टन्स था, क्या आपको लगता है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन जब रिसेंटली हुए वो सारा आपको बैकफायर कर रहा है? मैं वजाहत से आपका जवाब दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम दिल्ली गए, दिन दहाड़े फोटोज हमने डाले, हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, और किस वक्त मिले? जब यहाँ पे सारा बंद था। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने वहां डिमांड रखी कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स और पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दीजिए ताकि ये बातचीत कर पाए। डेमोग्राफी हमने ये कहा कि कश्मीर के लोगों को खदशा है कि आपने 370 उड़ाकर हमें जेलों में रखकर यहाँ डेमोग्राफी खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए वहां से क्लियरिफिकेशन आ गई, लेकिन हमने ये छुपाया नहीं। उसके बाद मुझे आप बताइए, जब ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई, वहां पीडीपी भी थी, वहां तारिक आमी साहब भी थे, वहां सजाद लोन साहब भी थे, वहां हम भी थे, तो ये हमारे ऊपर ही क्यों सुनवाई हुई? दूसरा पार्ट आपके सवाल का जो था, ये बिल्कुल सच है कि लोगों की नजरों में हमारे मुखालिफ कामयाब हो गए ये कहने में कि हम बी टीम में। मैं मानता हूं सबसे बड़ी वजह यही थी, इसलिए मैंने आज
एबेंडेंटली क्लियर किया, ना हम बीजेपी के पार्ट थे, ना हम बीजेपी के पार्ट हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ और आपकी सेंटिमेंट्स आगे पहुंचाने का, जितना लोग हमें मौका देंगे। सर, राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, क्या आप उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं? और दूसरा सवाल, आपने 370 को लेकर बात की, आपने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, यानी कि पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो लोगों से झूठे वादे करें, लेकिन आज आपने भी एक प्रॉमिस लोगों से किया कि फाइट अगेंस्ट द डिसीजन विल कंटिन्यू। क्या आपको लगता है फाइट अगेंस्ट द डिसीजन विल कंटिन्यू? सर, आपको लगता है कि ये प्रॉमिस जो है स्टेट में जो आई विल टेल यू, पहली बात यह है, राहुल गांधी साहब का आने का मुझे इल्म नहीं है, ना हमें कोई दावत है। इलेक्शन बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपनी पार्टी को, उन्हें नया प्रेसिडेंट बनाने को क्या करना, मुझे इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है। होता यह है कि अगर कोई हमें बुलाएगा तो वी टेक ए डिसीजन ऑन दैट। सब्जेक्ट क्या है, क्यों जाना है। रहा सवाल, इसमें आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, आपका शायद ये सवाल होगा कि या हम कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2/3 अक्सरियत ले ली और उन्होंने कहा हम इंटरनल ऑटोनॉमी लाएंगे। इंटरनल ऑटोनॉमी का जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, वो वहां पे गया और वहां पे रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ। या तो उस वक्त वो रिवोल्ट करते, क्या आपने हमें ये करने नहीं दिया, लेकिन वो उसी हुकूमत में रहे, हुकूमत कंटिन्यूटी के लिए, और उस वक्त उमर साहब एनडीए के मिनिस्टर थे, शायद ये वजूहत हो सकते हैं कि उन्होंने कंटिन्यू किया। इसीलिए मैंने वजाहत की, ये जो लॉज ये बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी इसलिए है कि हम एक डिसएम्पावर्ड वजीर आला को आगे रखेंगे। मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, मैं लोगों की नुमाइंदगी नहीं करूं, इसके लिए हम फाइट करेंगे। हमारे पास अपने क्या इख्तियारात होंगे वो हम करेंगे। अगर दिल्ली से बात उठानी होगी, जो भी वहां पे सरकार में हो, वो हम उठाएंगे और ताकत से कश्मीरी और कश्मीरियत को लेकर, आपकी इज्जत को लेकर हम। थैंक यू सर।